Today's video is types of pointers. Right. So first, we will discuss about the various type of pointers which is available. Null pointer. That means it is used to initialize a pointer. A null pointer has a reserved value that is called null pointer constant for indicating that the pointer does not point to any valid object or a function. If we are saying null, right, so that means it is not pointing to any valid object. किसी भी memory location को ये point नहीं कर रहा है, right, or a valid object or function. We can use null pointer to initialize pointers. We can use them to initialize. If we want to initialize, we can use pointers. We'll use this in a program later on. Void pointer, which it is also known as generic pointer. It can hold address of any type of variable. As we know that if a pointer is pointer to int, if a variable which is pointer to int, it can hold only address of int variable. हमें पता अगर कोई पॉइंटर है वो पॉइंटर टू इंट है, इसका मतलब वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा. अगर वो पॉइंटर टू फ्लोट है तो इट मीन्स वो फ्लोट वेरिएबल्स का क्या कर सकता है, एड्रेस होल्ड कर सकता है. बट पॉइंटर टू अगर वाइड है, वाइड पॉइंटर विच वी आर कॉलिंग जेनेरिक पॉइंटर कह रहे हैं इसको हम, ये किसी भी टाइप वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, चाहे वो इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग डबल हो, चाहे कैर हो, वो सबका एड्रेस होल्ड कर सकता है. इट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट दिस. But what is the important point we have to remember in case of pointer to void? Void pointer cannot be dereferenced. मतलब हम void pointer को dereference नहीं कर सकते हैं. It can however be done using typecasting the void pointer. हम डायरेक्टली इसको dereference नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टाइपकास्ट करेंगे. टाइपकास्ट करके इसको dereference कर सकते हैं, right? This is a point which we will discuss later on in the same video. Key cannot be dereferenced. It can however be done using typecasting. Pointer arithmetic is not possible on pointers of void due to lack of concrete value and just size. साथ में हम इस पे pointer arithmetic भी apply नहीं कर सकते. There are certain restrictions, important point जो हमें pointer के pointer to void के केस में ध्यान में रखना होगा. And this is an example. This is pointer to void here. This is variable A. Then this is variable B. What we are saying, we are storing the address of A to PTR, right? So address of A, what type of variable is A? किस तरह का variable है? A भाई int variable है. तो PTR में we are storing the address of int variable, right? And later on in this program, we are assigning what, the address of a float variable in the same variable. The variable is same. Variable देखिए यहाँ पे PTR है, यहाँ पे variable क्या PTR है. तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ PTR वो क्या पॉइंटर टू वाइड है, इसलिए पॉसिबल. अगर पॉइंटर टू इंट होता और यहाँ पे अगर मैं ये तो वैलिड होता पर ये वैलिड नहीं होता उस केस में. इज दैट क्लियर? राइट. सपोज यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए यूजिंग PTR. कैसे प्रिंट करेंगे? हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा. जैसे हमने कहा ये तो टाइप कास्ट, वी कैन नॉट डायरेक्टली डीरेफरेंस नहीं कर सकते पॉइंटर टू वाइड को. यहाँ पे हमने क्या किया, PTR को क्या किया, टाइपकास्ट किया पॉइंटर टू इंट के अंदर और फिर डीरेफरेंस किया. ध्यान रखिए, जस्ट चेक द सिंटैक्स हियर. तो PTR में हम मान रहे हैं कि ये PTR में ये है अभी, राइट. यहाँ पे हमने क्या किया है, PTR को हमने टाइपकास्ट किया पॉइंटर टू इंट के अंदर और फिर उसको हमने क्या किया, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का, ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया, तब हमें वैल्यू मिलेगी 8. इसी प्रकार PTR यहाँ पे अगर इस केस में हम देखें तो PTR हमारा क्या था, PTR में क्या था, एड्रेस था एक फ्लोट वेरिएबल का. तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसको टाइपकास्ट किया पॉइंटर टू फ्लोट में और फिर डीरेफरेंस किया. इज दैट क्लियर? इस प्रकार वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वेरिएबल. हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वेरिएबल ए की और बी. इज दैट क्लियर? फाइन.
This we have to understand here. Then wild pointer. What is wild pointer here? If a pointer is not initialized, then it is called a wild, as a wild pointer. अगर pointer initialize नहीं है, जैसे आपने pointer को declare किया है, जैसे इस ढंग से अगर आपने pointer declare किया है, declare a pointer, but you have not initialized here, so it is called wild pointer, because they point to some किसी भी arbitrary memory location को point कर सकता है, because it is not yet initialized. तो और इससे क्या होगा कि it may cause some problem when we are running a program. तो प्रोग्राम आपका क्रैश हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, या अनवांटेड रिजल्ट दे सकता है. तो ये तरीका होता है कि हम पॉइंटर को जब भी डिक्लेयर करें तो हम उसको इनिशियलाइज भी करें. अगर नल से कर रहे हैं, वी कैन यूज नल आल्सो, और वी कैन assign addresses of a variable, or we can allocate using malloc से भी हम कर सकते हैं, calloc से. यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है वाइड पॉइंटर थ्रो कर रहे हैं, अगर तो इसमें आपने इनिशियलाइज नहीं किया. यहाँ पे अगर आप इस प्रकार इसमें डाल रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा. इट इज नॉट ए वैलिड. वी आर असाइनिंग ए वैल्यू. व्हाट इज रिकमेंडेड कि आइदर यू कैन असाइन नल, और यू कैन असाइन वेरिएबल एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, और यू कैन एलोकेट मेमोरी यूजिंग मैलॉक या कैलॉक. तो ये डायरेक्ट इस प्रकार जो असाइनमेंट कोई मेमोरी इसको एलोकेट हुई नहीं है अभी. पॉइंट इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल. तो पॉइंटर वेरिएबल किसी मेमोरी को ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा. तो मेमोरी एलोकेशन अभी हुआ नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी डन. ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एंड रिजल्ट इनटू सम प्रॉब्लम, राइट. देन dangling pointer. What is dangling pointer? A pointer pointing to a memory location that has been deleted or free. अगर ऐसी अगर पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी या फ्री कर दिया, तो वो जो पॉइंटर है जो उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जो हमने फ्री कर दिया. सपोज दिस इज वन पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन दिस, एंड सपोज ये मेमोरी लोकेशन हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी, ये फ्री कर दिया. व्हाट विल हैपन नॉर्मली, तो अब पॉइंटर जो है वो अभी भी डिलीट करने के बाद भी क्या कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग, राइट. बट इसमें अब क्या है, अगर वो फ्री कर दिया है, और फ्री करने से क्या होगा कि अब वो जो पॉइंटर है वो जो बना, वो पॉइंटर क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर होता है. पॉइंटर पॉइंटिंग मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड और वी हैव फ्रीड इट, and that pointer is called dangling pointer. There are various way where pointer act as a dangling. कई तरीके जहाँ पे pointer as a dangling pointer के रूप में काम या दिखाई दे सकता है, या as a dangling pointer रहेगा. या डीएलोकेशन, जैसे आपने कहा यहाँ पे मेमोरी आपने क्या की, allocate की. You have allocated the memory dynamically. मेमोरी allocate किया, यहाँ पे एस्ट्रिक और आएगा आपको, ठीक है, गुड, राइट. तो यहाँ पे आपने क्या किया, मेमोरी अलोकेट किया है. यू हैव अलोकेटेड द मेमोरी यूजिंग मैलॉक एंड 4 बाइट, और टाइप कास्ट किया, क्योंकि हमें टाइप कास्ट जरूरी, कोई मैलॉक पॉइंटर टू वाइट देता है, उसको पॉइंटर इंट में कन्वर्ट किया, और यहाँ आपने फ्री कर दिया. अब आपने तो आपका पॉइंटर तो पीटीआर था, वो क्या कर रहा था भाई, इस हिसाब से देखे तो वो उसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसी भी लोकेशन जो आपने मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन यहाँ पे फिल किया है. तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो वंस यू हैव डिलीटेड दैट, आपने फ्री कर दिया, यहाँ पे यू हैव डीएलोकेटेड द मेमोरी, बट पीटीआर इज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट. पीटीआर उसको भी उसी, तो पीटीआर में क्या उसका एड्रेस आ गया ना, तो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दैट ब्लॉक विच इज बीन डिलीटेड. अब मैं पीटीआर को आगे कहीं पे काम में ले रहा हूँ इसी प्रोग्राम में, तो दैट पीटीआर नाउ पीटीआर बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर. Memory relocated, hence PTR is now a dangling pointer, right? दूसरा तरह का फंक्शन कॉल के अंदर हो सकता है. When we are calling a function, and in this function what we are doing, we have called a function here. यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया है, we move to function. फंक्शन में वेरिएबल t डिक्लेयर हुआ है, we are returning the address of t here as we are
Return type of function is pointer to int. So what ptr will have the address of this. तो ये एड्रेस, लेकिन जो t है वो कहाँ पर है, t जो वेरिएबल है वो कहाँ डिक्लेयर हुआ है, इट बीन डिक्लेयर्ड इन टेस्ट. नॉर्मली डिक्लेयर कहाँ हुआ, टेस्ट में डिक्लेयर हुआ, राइट. अब जब टेस्ट में डिक्लेयर हुआ तो उसका एड्रेस आपने यहाँ रिटर्न किया किसको, ptr. ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एड्रेस ऑफ t. बट जैसे हमें पता है कि लोकल, व्हाट इज t, इट इज लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन में. एंड जैसे ही हमने कहा व्हाट हैपन्स नॉर्मली व्हेन द फंक्शन गेट्स ओवर, जब फंक्शन अपना काम खत्म कर देता है तो लोकल वेरिएबल विल व्हाट, दे आर रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. स्टैक से क्या रिमूव हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा. तो अब वो रिमूव हो गया, लेकिन हमने उसका एड्रेस रिटर्न बैक कर दिया. तो ये पीटीआर जो है, आपने जब एस्ट्रिक पीटीआर का, तो नॉर्मली व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 आना चाहिए, बट जहाँ 40 पड़ा था वो मेमोरी लोकेशन क्या हो गई है, दैट इज बीइंग वॉश्ड आउट. वो वॉश हो गई या लॉस्ट हो गई, हम ये कह सकते हैं रिमूव हो गई. तो यहाँ पे जो है, नाउ दिस पीटीआर is what it is a dangling pointer. PTR is pointing to something which is not valid. PTR ऐसी चीज को पॉइंट कर रहा है जो वैलिड नहीं है. That's why the PTR becomes dangling pointer. Is that clear? Fine. Note, if pointer pointing to a local variable which is static, then PTR will not be a dangling pointer because static variable are stored in global area. They have a separate area for their storage, so they are not get lost. अगर यहाँ पे मेरा इसकी जगह क्या होता है, यहाँ पर if I am having what static, यहाँ इस केस के अंदर स्टैटिक अगर है तो उस केस में क्या होगा, the PTR will point to that T because static variables are not stored in the stack. They are having separate area which we are saying is a global area for static के लिए है और आपके global variables के लिए that area. वहाँ पे static variable stored है. तो वो जब फंक्शन कॉल खत्म होगा, फंक्शन खत्म हो रहा है तो वो लॉस्ट नहीं होगा. तो T अभी भी मेमोरी में है. तो वहां पे जहाँ पे भी उस T का जो एड्रेस है दैट विल बी असाइंड टू PTR. नाउ PTR विल नॉट बी डैंगलिंग पॉइंटर. यहाँ PTR डैंगलिंग पॉइंटर नहीं होगा. ये हमें क्लियर रखना है. इज दैट क्लियर? हमने वही चीज यहाँ पे एलोबरेट की है कि भाई ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए लोकल वेरिएबल विच इज स्टैटिक. अगर पॉइंटर एक लोकल वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो लोकल वेरिएबल क्या स्टैटिक है, इफ इट इज स्टैटिक, अगर वो स्टैटिक है, then the PTR will not be a dangling pointer because static variables are stored in global area. They are not in stack, right? तो हमें यहाँ क्लियर रखना है कि ऐसे केस में भी डैंगलिंग पॉइंटर हो सकते हैं, स्टैटिक नहीं है. तो नाउ वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप. अब जैसे आपने यहाँ कोई किसी ब्लॉक में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ध्यान रखिए पीटीआर एक वेरिएबल है. इन ए ब्लॉक वी हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल ए, वी हैव असाइन्ड द एड्रेस ऑफ ए टू पीटीआर. लेकिन जैसे इस ब्लॉक से बाहर आप यहाँ पे आ रहे हैं, व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक से बाहर आप आए, क्या होगा उस केस में व्हाट विल हैपन नॉर्मली, ये जो पीटीआर है वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा. क्यों? तुम जैसे ब्लॉक से बाहर आ रहे हो, कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लॉक, जो ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ वेरिएबल दे विल गेट लॉस्ट. वो वेरिएबल लॉस्ट हो जाता है. तो पीटीआर विल पॉइंट टू दैट एड्रेस जो वैलिड नहीं है, विच इज नॉट नाउ वैलिड. तो यहाँ पीटीआर क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर. तो ऐसे केस में भी डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, राइट. दिस इज अबाउट डैंगलिंग पॉइंटर. इज दैट क्लियर? नाउ स्मार्ट पॉइंटर, ये they are not in C but in Java or C++. Smart pointer that automatically manage memory and they will deallocate the object when they are not in use, when the pointer is going out of scope automatically. इसमें क्या होता है कि अगर ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, जैसे हम जावा में बात करते हैं वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम C++ का कॉन्सेप्ट है. they have smart pointer that automatically manage memory. They will deallocate the object. अगर deallocate कर रहा है ऑब्जेक्ट को, कि जब ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है, कि जब पॉइंटर है वो क्या करता है, आउट ऑफ स्कोप चला गया पॉइंटर, देन दैट विल बी ऑटोमेटिकली deallocated, right? Those pointers we are calling, they are called smart pointers. Is that clear? Right. Now
दिस आर ओल्ड टर्म, बट ध्यान में रहता है लोगों के नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर। जब हम कह रहे हैं इंटेल 16 बिट जो मशीन्स थी वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे। तो नियर पॉइंटर यूज टू स्टोर 16 बिट एड्रेसेस, 16 बिट एड्रेसेस को स्टोर करेगा, मीन्स दैट विद इन करंट सेगमेंट ऑन 16 बिट मशीन, 16 बिट मशीन की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर यूजिंग 32 64 बिट मोड बिट मशीन नॉर्मली। So it is used to 16-bit addresses mean within current segment on a 16-bit machine. The limitation is that we can only access 64 KB of data. कि हम 64 KB of data ही access कर सकते थे near pointers के use में. That is क्यों कर सकते हैं 2 के power 16? That means that will give to this 65536 and the addresses generated can be generated from 0 to 65535, which is equivalent to 64 KB के बराबर है. So that is called near pointer. A far pointer means if you want to access memory, right, you want to access more memory. तो वहां पे था far point is typically 32 bit that can access memory outside current segment. जो current segment है उसके बाहर भी वो मेमोरी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. इफ यू वांट टू एक्सेस, इफ यू, अगर आपकी नीड ऐसी है कि आपको जो 64 KB के बियॉन्ड अगर मेमोरी एक्सेस करनी है तो हम फार पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, 32 बिट and can access memory outside the kernel. To use this, compiler allocates a segment register. Compiler क्या करेगा, segment register allocate करेगा to store segment का एड्रेस, जो segment है उसका एड्रेस, और दूसरी चीज है वो offset. Then another register to store offset. तो उस segment के context में उसका क्या offset भी होगा. तो इससे क्या होगा कि हम जो 64 KB के बियॉन्ड क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस, इफ यू वांट टू एक्सेस बियॉन्ड, अगर 64 KB से बाहर आपको कोई मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी को एक्सेस करना है, और डायनेमिक मेमोरी कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सेस करना है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं. दैट क्लियर. देन ह्यूज पॉइंटर. ह्यूज पॉइंटर में क्या है कि भाई इट इज सेम एज फार पॉइंटर, बट इसमें क्या है कि जो फार पॉइंटर में जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट इज फिक्स, उसमें फॉर सेगमेंट क्या फिक्स हो इसमें, पर इसमें सेगमेंट क्या आपका मॉडिफाई हो सकता है. सेगमेंट कैन बी, अगर सेगमेंट मॉडिफाई हो सकता है तो हम और ज्यादा मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूज पॉइंटर. बट नॉर्मली हम कह रहे हैं अब इनका इन टर्मिनोलॉजीज का यूज नहीं होता है, बट पुराना कोई किसने पढ़ा हुआ है तो उसको पता होना चाहिए नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर है, व्हाट यू मीन बाय ह्यूज पॉइंटर. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ वी वांट टू चेक दिस थिंग यूजिंग प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स हम चीज को देखना चाहें. तो नाउ दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम. तो यहाँ जस्ट सी हियर, दिस इज pointer and what we are assigning null to it, what we are assigning null, right, null to this. So this is null pointer. We are it is not pointing to any memory, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, और यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं दिस ptr1. यहाँ पे वाइड पॉइंटर कह रहे हैं क्योंकि इसमें नल भी नहीं है और ये किसी भी आर्बिट्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है, बट it is a while pointer as it is not initialized and pointing to any arbitrary memory location. And ptr2 is also a while pointer. What we have done here, we have declared a variable a. We have declared a variable a here, right? And ptr1 में what we have assigned, address of a. ptr1 में अब ptr1 जो है वो while pointer नहीं रहा क्योंकि ptr1 में क्या आ गया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल a आ गया. नाउ इट इज नॉट while, right? Now we are asterisk ptr1, तो दैट मीन डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा. लेकिन जब ptr आप प्रिंट करेंगे, ptr में फिलहाल आपके पास क्या है, व्हाट यू आर हैविंग हियर, मैं यहाँ पे नल असाइन नहीं कर रहा सपोज, तो व्हाट यू विल फाइंड, यू विल हैव सम गार्बेज वैल्यूज. हम ptr को भी यहाँ डी रेफरेंस कर रहे हैं, राइट. देन हमने ptr2 में क्या किया, मेमोरी एलोकेशन किया है
4 बाइट्स, और उसमें हमने 1200 क्या किया, असाइन कर दिया, राइट। नाउ यहाँ भी हमने डी रेफरेंस किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि अभी नल का देखा, फिर हमने कहा हम वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं, फिर हम किस प्रकार से मेमोरी एलोकेशन हमने किया यहाँ पे, इन चीज़ों को यहाँ ले। अब इफ यू टू रन दिस प्रोग्राम, यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको को दिखाई दे रही है, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हो रही है यहाँ पे, यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए हियर, राइट, दैट इज 10 यूजिंग वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर प्रिंट कर रहे हैं। पीटीआर 1 में क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ ए, एंड एस्टिक पीटीआर 1 से क्या होगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पे भी क्या वैल्यू 10। पीटीआर जब प्रिंट किया आपने, एस्टिक पीटीआर मीन्स ये प्रिंट किया, इसमें क्या वैल्यू पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ी, दिस इज ए गार्बेज, व्हाट इज दिस, दिस इज ए गार्बेज वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड गार्बेज, राइट। व्हेन वी हैव PTR2, वी हैव मेमोरी एलोकेशन किया हमने, तो PTR2 किसी मेमोरी को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, PTR2 इज पॉइंटिंग टू ए मेमोरी जो आपने एलोकेट की है यहाँ पे, राइट, इन दिस वे, मेमोरी इज बीन एलोकेटेड, राइट। उसमें क्या असाइन किया, फिर आपने डी रेफरेंस करके व्हाट यू असाइन, यू असाइन दिस 1200 टू दैट, राइट। फिर आपने डी रेफरेंस किया, तो क्या प्रिंट हुआ, आपको उस एड्रेस पे, PTR2 के एड्रेस पे क्या पड़ा था, 1200 पड़ा। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार हम वाइड पॉइंटर और नल पॉइंटर को यहाँ पे समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर, राइट। नाउ to try another program, यहाँ पे हम डैंगलिंग पॉइंटर को देखते हैं। This is a function which is returning the address of the local variable t, right? Now this is our main function. It will call this int asterisk ptr equals to address test. We are calling this function, right? Then we have to print, suppose printf %d, that is asterisk, that is dereferencing ptr, right? 0. Saving this program, dng1. So that means nothing has been printed and the program is been terminated here. What we want, हमने क्या चाहा था इसमें कि we are calling this function test call किया and we are returning the address of t. T is declared in test. It is local to test. When the control comes to the test to this main function, it will assign that address to PTR. Now PTR is pointing to a memory location which is not valid. वो मेमोरी लोकेशन अब वैलिड नहीं है, बिकॉज वो मेमोरी लोकेशन जिसको अलोकेट हुई थी, टी को अलोकेट हुई थी, जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुआ, ऑब्वियसली फंक्शन खत्म हुआ, तो दैट मीन जो भी टी को मेमोरी अलोकेट हुई थी वो क्या हो गई, वहां से स्टैक से डिलीट हो गई, दैट स्टैक हैज बीन डिलीटेड, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन,
when we come to the caller, so it will assign that address which is been deallocated or been removed, we can say. So when we are saying dereferencing, PTR will not get 900, will not get 900 in this case. So this is PTR. यहाँ PTR क्या बन गया, एक dangling pointer बन गया. Is that clear? Fine. Now we'll change little bit, make it static. Now we'll compile this program and run it. Now what you got here, आप देखिएगा आउटपुट आपके सामने आ रहा है 900 you will having it. अब स्टैटिक होने से क्या हुआ, स्टैटिक होने से क्या हो रहा है कि when the function call, ये फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो ये t है वो मेमोरी से लॉस्ट नहीं होगा, बिकॉज t हैज बीन एलोकेटेड ए सेपरेट एरिया. वो एरिया जो स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल के लिए एलोकेट होता है एंड वो थ्रू आउट प्रोग्राम रहेगा. दैट एरिया, the value at that area will remain throughout the program. जब तक प्रोग्राम चलेगा उस एरिया में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज वो वेरिएबल वहां बने रहेंगे. एग्जैक्टली ये समझने की. तो यहाँ पे आप देखिए कि रिटर्न टी किया तो पीटीआर में एड्रेस ऑफ टी आया, और टी जो है वो पॉइंट एड्रेस ऑफ जो पीटीआर पॉइंट करेगा किसको, टी को पॉइंट करेगा. टी अभी भी मेमोरी में है. तो नाउ टी जब हमने कहा मेमोरी में है तो पीटीआर यहाँ डैंगलिंग पॉइंटर नहीं हुआ. तो जब एस्टिक पीटीआर करेंगे तो यू विल फाइंड 900. तो यहाँ पे 900 वैल्यू आपको मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? डैंगलिंग पॉइंटर, राइट. In this example, we are allocating memory, right? And this is the memory allocation here. Dynamic memory allocation. We are assigning 12 to this allocated block. This is PTR pointing to this block, right? And we are assigning 12 to it, right? 12 is been assigned here. Then we are adding 1 to it, and value of PTR before free, not PTR, but the value at PTR. The value at PTR before free is 13. We have what we have done. We have freed that PTR. That means PTR जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था वो ब्लॉक क्या हो गया, फ्री हो गया. बट हमें पता है भाई ये डायनेमिक एलोकेशन कहाँ होता है, मेमोरी में एक एरिया जिसको हम कह रहे हैं हीप में होगा. दैट इज इन हीप एरिया, राइट. किसमें होगा, हीप में होगा. फाइन. अब यहाँ पे नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि हम मान के चल रहे हैं कि पीटीआर यहाँ पे डैंगलिंग पॉइंटर हो गया, क्योंकि पीटीआर को जो मेमोरी एलोकेट होती वो दैट इज बीन डी एलोकेटेड. बट व्हाट विल हैपन, एस्टिक पीटीआर प्लस 1, कई बार हम ये देखेंगे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं एस्टिक पीटीआर तो दैट मीन जो पीटीआर था वो यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 14 हो गया. दैट मीन्स हाउ वी कैन एक्सेस, हम कैसे एक्सेस कर पाए कि हमने फ्री कर दी मेमोरी, उसके बाद भी हाउ वी कैन एक्सेस डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म. तो इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे हम पीटीआर को हमने जैसे डी एलोकेट किया तो डी एलोकेट के बाद हम क्या करें, उसमें नल असाइन कर दें. इट इज बेटर टू असाइन नल. पीटीआर इक्वल्स टू नल. नॉर्मली यहाँ पे हम नल असाइन कर दें यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस में. तो पीटीआर को इनिशियलाइज कर दें हम लोग नल से, ये किया. इट इज बेटर टू असाइन. तो वहाँ पे फिर अब कुछ प्लेटफॉर्म पे होता है कि अगर ऐसा नहीं भी किया और आपने ये इनकी पीटीआर एस्टिक पीटीआर को रेफरेंस किया तो वहाँ पे क्या होगा कि दे विल थ्रो एन एरर दैट इज कॉल्ड, जो सेगमेंट फॉल्ट एरर आ जाती है. क्या आती है, सेगमेंट फॉल्ट एरर आ जाएगी. दैट मीन सम प्लेटफॉर्म, जैसे हम जो प्लेटफॉर्म अभी इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको ये एरर नहीं दिखेगी, ठीक है. तो when you run this compile this program,
रन इट। तो यहाँ पे आपको what your value you are getting here, so value at PTI is 13, then what we have done, we have initialized, even though यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस हो पा रहा है, मीन्स क्योंकि जो हीप है जिसको ये पॉइंट कर रहा था हीप, तो हीप में जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, द वैल्यू हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे कई बार इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमें कि भाई हमने ये डैंगलिंग पॉइंटर होने के बाद भी वो जो एरिया है वो अभी एक्सेस हो पा रहा है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स। हमने कहा देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सेगमेंट जो है एरर आ जाएगी, सेगमेंट फॉल्ट आ जाएगा। ऐसे केस में कि अगर हमको ऑलरेडी हमने फ्री कर दिया, उस एरिया को वापस से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक्सेस नहीं होने देगा, दैट विल बी सेगमेंट फॉल्ट एरर। बट in some platform that is being accessed, but it is not a good practice to access, तो हम क्या कर लेंगे, फ्री करने के बाद उसको हम नलीफाई कर दें, जैसे कि, लेकिन यहाँ पे नलीफाई करने के बाद भी पीटीआई वो एक्सेस, तो वो लोकेशन तो एक्सेस कर ही रहा, +1 से आप देख रहे हैं यू आर गेटिंग 1, राइट। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम, नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्री करने के बाद पीटीआर यहाँ पे एक डैंगलिंग पॉइंटर हो गया है। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ प्रोग्राम टू यूज ऑफ पॉइंटर टू वॉइड को हम समझना चाहें यहाँ पे, हैश इंक्लूड now what do we want? We want to access print the value of a using ptr. How we can do it? Printf then a equals to %d \n, then how we can print? That means we have to typecast it because it is a is integer, and we have to typecast into pointer to int, then the ptr. So what we are doing here, ptr is pointer to void, and we are holding ptr में क्या पड़ा है, ptr में पड़ा address of variable a which is integer. So the ptr will be typecasted into pointer to int में typecast होगा, और फिर d reference हो रहा है, ध्यान रखिए, पहले ये होगा फिर d reference होगा, then you will get the value of a. But if you want to get the value of b, जो हमारे पास क्या है, तो कैसे करेंगे उसको, हम पहले ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b यहाँ साइन किया। अब ptr पॉइंटर टू yd है, b किस टाइप का फ्लोट है, तो उसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, b इक्वल्स %f backslash then asterisk, then float asterisk pointed to float and ptr. So in this way we can access say this is a way through which we can access. Directly we cannot access, as we have already gone through in the theory concept कि we cannot dereference pointer to void. void को हम dereference नहीं कर सकते यहाँ पे, we cannot perform arithmetic on pointer arithmetic on these. So a value of a is 10 here, and the value of b is 89.23003. That is a float value, right? So this is the use of pointer to void. It's a generic pointer. We can
assign address or any type of variable, right? So, hope कि आपको इसी समझ में आई होगी, and keep on practicing. Till then, have a nice day.